हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1। सो इन प्रीवियस लेक्चर्स वी स्टडी until charges, charge properties and methods of charges, and after that we see about Coulomb's law, which called be electrostatic force. Now I have given a problem in last minutes. I hope आप सभी ने उसको ट्राई किया होगा। देखते हैं उसी प्रॉब्लम को। तो हमारे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसके 3 साइड्स पॉइंट्स पे Q Q Q चार्जेस थे और जो इनकी लेंथ थी वो गिवन थी L L L, और जो ट्रायंगल था उसके एक सेंटरॉइड पे कैपिटल Q चार्जेस रखा हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। जो हमारा कैपिटल Q चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स पूछा गया है। तो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इस पे नेट फोर्स कैसे निकालना है। हमें पता है कि ड्यू टू एवरी पॉइंट चार्जेस या ड्यू टू एवरी चार्ज force accelerated on other charges. Okay, so due to point charge A, point charge B and point charge C, every point charge will apply force on capital Q charge. Okay, how it will react, how it will be applied, we will see here. Assume that this point charge A, point charge applying force on capital Q such like that, dash 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 such like that. This is assume F1 force. Okay, due to B point charge small q, what will be force on capital Q? It will be react on or apply like that, this. Okay, this is F2 charge. Due to point charge C, due to point charge C, the force direction will be such like that. Okay, this is F3. Now we know that the general form of force on charge is F equals to K Q1 Q2 upon R square. Okay, और मैंने आपको पैरेललोइड का जो एग्जांपल बताया था इस तरीके से, जहां पर 3 चार्जेस पुट थे, दिस चार्ज, दिस वन एंड दिस वन, एंड आस्क्ड फोर्स ऑन दिस चार्ज वेयर वी यूज वेक्टर सम। तो दिस प्रॉपर्टी आल्सो विल बी यूज इन दिस प्रॉब्लम आल्सो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर ऑल साइड्स हैव L side and have equal charges on their side points, and we know that equilateral triangle have angle of 60 degree. Okay, so from here you can see here, let's assume this point is where capital Q charge is put, this is point O. So you can see that we have assuming a longitudinal on base of triangle side. Okay, this is point P. So such in, we are talking about this small triangle, this is right angle triangle. Okay, in triangle AOP, this is such like that, this is A, this is P and this is O, where आपको पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के फॉर्मेशन में होते हैं। तो ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, इस एंगल को, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, दिस विल आल्सो 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, सो दिस इज ए राइट एंगल। सो फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल, जो हमारा संपूर्ण त्रिभुज होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी प्रॉपर्टी से हम यहाँ निकालेंगे। हमें क्या चाहिए कि पॉइंट ए से पॉइंट ओ के बीच के डिस्टेंस, तभी तो हम फोर्स के बीच की दो पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो वो हमारी डिस्टेंस है वो है ए ओ। अब ए ओ को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस कर्व, दिस इज बेस विच इज गिवन विच L/2, because we know that this centroid point is longitude or perpendicular on this base side, it will be divide the length in
bisection. Okay, so it will be L by 2, this length will be L by 2 and this length also will be L by 2 and total length was L. Okay, so this is L by 2. We have to find this length, hypotenuse. So we know that cos theta equals to base upon hypotenuse. What is base? L by 2, and what we have to find hypotenuse. From we know that theta is 30 degree, cos 30 degree equals to L by 2 upon hypotenuse. Okay, so from down to above, hypotenuse will be equal to L upon hypotenuse equals to L upon 2 cos 30 degree. This is cos 30 degree. Okay, what is the value of cos 30 degree? Cos 30 will be equal to root 3 upon 2. We will put this value here, so we get L by 2 upon root 3 by 2. Okay, so it will be like L by 2 into root 3 and this 2 will be in above side, to this 2 will cancel out and we get from here hypotenuse will be L upon root 3. अब हमें पता चल गया है कि जो हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है वो है L by रूट 3. सो पॉइंट ए चार्ज और पॉइंट ओ चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट ए चार्ज है और पॉइंट ओ चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? L by अपॉन रूट 2. ये हमने कैलकुलेट कर लिया है. सो आई विल इरेज नाउ टू डू फर्दर. हमने फाइंड आउट कर लिया है जो हमारा हाइपोटेनियस है वो है L by रूट 3. ओके, सो इन ट्राइंगल AOP व्हाट विल बी द फोर्स F1. अब आप सोच रहे हैं जो F1 की डायरेक्शन ये मैंने आउटवर्ड ही की लिया है. लेट्स अज्यूम the all charges are positive. When the property of charge is not given, we will always assume that charge in positive state. So for positive charges force will be repelled. So due to small q charge it's positive and capital Q charge is also positive. So force on capital Q charge due to small charge q, the direction of force will be repelled outside of the point q charge. Okay, so we take direction of F1 such like that. So F1 will be our K. चार्जेस क्या है हमारे Q1 Q2, एक कैपिटल Q है एंड अनदर वन इज स्मॉल q. सो वी विल पुट कैपिटल Q, स्मॉल q और r स्क्वायर जो बीच की डिस्टेंस होती है चार्जेस के बीच की डिस्टेंस वो क्या है? L अपॉन रूट 3. वो हमने ले लिया L अपॉन रूट 3. अब इसकी जो डायरेक्शन है F1 की जो डायरेक्शन है वो कैसे? A से A की ओर, फ्रॉम पॉइंट A टू O. जो हमारा पॉइंट A से O की ओर हमारा F1 है, फ्रॉम A टू O. सो वी विल राइट डायरेक्शन अलोंग AO. ओके, सच लाइक दैट वी विल राइट F2. F2 will be the force on capital Q charge due to small charge, या हम कह सकते हैं द फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट B, दैट विल बी K Q स्मॉल q r स्क्वायर L अपॉन रूट 3. दिस इज स्क्वायर एंड द डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज के कारण अप फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पॉइंट चार्ज. सो इट दिस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम B टू O. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अलोंग B to O. ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट F3 चार्ज. F3 फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज C. जो C की डायरेक्शन है वो F3 फोर्स बताएगा. सो दैट विल बी K Q Q अपॉन L अपॉन रूट 3 स्क्वायर ऑफ अलोंग CO. ओके, सो ये हमने फोर्सेस निकाल लिए हैं पॉइंट O पे. अब नेट फोर्स क्या होगा? सम ऑफ टोटल फोर्सेस. ओके, लेकिन
हम इतनी कैलकुलेशन करें क्यों? हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जो हमारा पैरेललोपॉइड था, जैसे ये दीज आर टू फोर्सेज F such like that F2 and F3, this magnitude will be in direction F1. Okay, so we have two perpendicular longitudes, so this was like पैरेललोपॉइड. ओके, जहां पर हम वेक्टर सम को यूज करते हैं, तो वो ही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे. आप देख रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट O है वो इस तरीके से, ये तो है हमारा F1 और ये है हमारा F2 और ये है हमारा F3. तो हमारे पास एक तो हो गई पॉइंट O पे जो चार्ज है कैपिटल Q पे, उसकी एक डायरेक्शन होगी F3 की डायरेक्शन में, और दिस फिनोमिना विल जनरेट पैरेललोपॉइड कंडीशन सच लाइक दैट वी हैव डन ए परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए परपेंडिकुलर. सो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा F2 और F1 का वो इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, क्योंकि जो इसके कंपोनेंट्स होंगे F2 के कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, सच लाइक दैट F1 के कंपोनेंट होंगे वो एक इस डायरेक्शन में होंगे और एक इस डायरेक्शन में होगा. तो ये कंपोनेंट फोर्स का और ये कंपोनेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड में तो सेम ही है. आप देख सकते हैं सबका मैग्नीट्यूड सेम ही आ रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है. ये अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो ये है नेगेटिव x डायरेक्शन में. तो ड्यू टू नेगेटिव डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन, दिस फोर्स विल cancel to each other. Okay, so such like that what component will be remain? The upper component and lower down component. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, this is x direction, this is in y direction and this is third direction z. So this is negative x direction, this is negative y direction, okay, and this is नेगेटिव z डायरेक्शन. तो अब हमारे पास बचा क्या क्या है? आप इस सिनेरियो को देखेंगे, सिर्फ इस सिनेरियो को देखेंगे तो हमारे पास बचा क्या क्या है? एक अपर डायरेक्शन बची है, तो हम इसको मिटा देते हैं, और एक लोअर डायरेक्शन बची है, और इनके जो मैग्नीट्यूड्स है फोर्स के, जो ये फोर्स के मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, जो सेम है. तो अपर डायरेक्शन ड्यू टू लोअर डायरेक्शन, दैट मीन्स प्लस जे डायरेक्शन और माइनस जे डायरेक्शन, द फोर्स विल बी कैंसल आउट बिकॉज मैग्नीट्यूड्स आर सेम. सो द टोटल नेट फोर्स, सो टोटल नेट फोर्स will be 0. आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आएगा. तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैंने इस न्यूमेरिकल में क्या किया था. हमको एक प्रॉब्लम गिवन थी जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ्स L है, ठीक है, और इसके जो पॉइंट्स हैं वो है स्मॉल q, यानी जो इसके सीड्स है, साइड पॉइंट्स के जो पॉइंट्स हैं, साइड एंगल लेंथ्स के जो पॉइंट्स हैं उनके पॉइंट्स पर स्मॉल q चार्जेस रखे हुए हैं और एक सेंटरोइड पे यानी केंद्रक पे कैपिटल Q चार्ज है. तो हमसे फोर्स पूछा गया था इस कैपिटल Q चार्ज पे. तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला कैपिटल Q पे, इधर से भी एक परपेंडिकुलर डाला और एक इधर से भी एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया. तो स्मॉल q के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में थी, जिसको मैंने दे दी F1, और जो हमारा B पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन थी वो थी F2, ठीक है, और जो C पॉइंट पे जो हमारे स्मॉल q चार्ज है उसके कारण मेरे फोर्स की डायरेक्शन थी F3. अब मुझे ये पहली बात तो इतनी जो मैंने कैलकुलेशन करी इसको करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होता F2 और F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन होता है वो अपर y डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं x y से, और जो F3 का मैग्नीट्यूड है वो -j डायरेक्शन में है. लेकिन फिर भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करके बताया. जो हमारा F1 होगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r². हमें ये डिस्टेंस नहीं पता थी कि ये डिस्टेंस क्या क्या है, तो मैंने इसको स्मॉल ट्राइंगल को बाहर निकाल के
मैंने आपको बताया था स्मॉल एंगल को बाहर निकाल के, जिसमें ये 30 डिग्री का एंगल था, ये राइट एंगल 90 डिग्री है, ये हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। और ये हो जाएगी डिस्टेंस L/2, क्योंकि जो सेंटरोइड से जो परपेंडिकुलर आ रहा है इस साइड पे, ये जो लेंथ को हाफ में डिवाइड कर देगा, ठीक है। इससे मैंने h कैलकुलेट कर लिया, जिससे हमारे पास जो h आई वो आई L/√2, ठीक है। जो हमारा जनरल फॉर्म होता है फोर्स का वो हमें पता ही है, F = K Q1 Q2/r² और r कैप डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जहाँ पर जो हमारा Q1 है वो मैंने इसको डिनोट कर दिया था कैपिटल Q से, और जो हमारे सेकंड चार्जेज है वो डिफरेंट पॉइंट चार्ज है, उनकी वैल्यू हमने पुट करी है। जैसे यहाँ पर सारे चार्ज इक्वल है स्मॉल q, ठीक है, जिसके कारण मैंने F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला। फिर हम इसको कंपोनेंट फैक्टर में भी बांट सकते थे कि साइन थीटा कोस थीटा की फॉर्म में डायरेक्शन को लिखने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बांटा क्योंकि वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है और वो एक 11th क्लास का टॉपिक है। आगे कहीं यूज होगा तो हम कंपोनेंट्स फॉर्म में भी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट्स फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा जो F3 है वो तो है -j डायरेक्शन में, और जो ये F1 और F2 का जो मैग्नीट्यूडल फोर्स है उसकी डायरेक्शन है +j डायरेक्शन में। सो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो KQQ/L/√3 का होल स्क्वायर, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन अपोजिट है तो ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो हमारा जो टोटल नेट फोर्स चार्ज होगा कैपिटल Q चार्ज पे यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये थी हमारे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन की एक स्टोरी कि हम कैसे फोर्स कैलकुलेट करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी सेंटरोइड पर रखे चार्ज के ऊपर। ऐसे वो किसी साइड पॉइंट चार्ज पे भी फोर्स पूछ सकता है, तो वो भी निकालना काफ़ी आसान है, बस वही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक, आपके हर साल इस टॉपिक से पक्का श्योरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यह आपके हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11 यानी लास्ट 10 ईयर्स से फ्रॉम 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 आपको कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये श्योर है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हम डेली लाइफ एग्जांपल से लेके चलते हैं कि माना दिस इज ए फील्ड, ओके, एक खेत मान लेते हैं या फिर क्रिकेट ग्राउंड मान लेते हैं, वेयर एक केप्ट ए कैपिटल Q चार्ज, ठीक है। और इस कैपिटल Q चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q चार्ज है, ठीक है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। तो इस कैपिटल Q चार्ज के कारण स्मॉल q चार्ज पे फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा वही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो कैपिटल Q चार्ज के कारण स्मॉल q पे जो हम फोर्स लिखेंगे उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो ड्यू टू, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स ऑन स्मॉल q चार्ज ड्यू टू कैपिटल चार्ज विल बी इक्वल्स टू KQ/r²। तो ये तो फोर्स होगा। तो आप यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए कि जो इस कैपिटल Q चार्ज के कारण स्मॉल q पे जो फोर्स लग रहा है, जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, जितनी डिस्टेंस तक इन्फ्लुएंस हो रहा है वो ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो कि जो स्मॉल r डिस्टेंस तक है वहां तक इसका इन्फ्लुएंस होता है। अब ये r इनफाइनाइट तक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक Q चार्ज है, अदर Q चार्ज जैसे Q डैश चार्ज है, उसकी डिस्टेंस R1 है, R1 डैश है, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा F स्मॉल q डैश ड्यू टू Q इक्वल्स टू KQ डैश अपॉन R1 डैश का स्क्वायर, ओके।
ये इस क्यू डैश चार्ज पे, इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इसका फोर्स का इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। यानी जो फोर्स है वो एक तरीके से कुछ भी डिस्टेंस हो सकती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हो सकती है, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जितने एरिया तक, जितनी रेंज तक फोर्स का इफेक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है चार्ज का, वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया होगा। यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारी क्षमता होती है, जैसे हम देखने को तो अनंत दूरी तक देख सकते हैं, लेकिन विजिबिलिटी हमारी कुछ मीटर तक ही होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अनंत दूरी तक देख नहीं सकते, देख तो सकते हैं ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन थ्योरेटिकल तो कह सकते हैं कि मैं बहुत काफी दूर तक की चीजें देख सकता हूँ। हमने आकाश में एरोप्लेन्स देखे होंगे, लेकिन हमको स्ट्रेट लाइन पे काफी दूर का एक व्हीकल नहीं दिखता, लेकिन हमको क्या बोलते हैं, अपने जो स्पेस होते हैं स्काई में काफी दूर का एरोप्लेन दिख जाता है, रॉकेट्स दिख जाते हैं, तो उनकी रेंज अलग अलग होती है। तो हमारी जो रेंज है अगर थ्योरेटिकली बोले तो इनफाइनाइट तक है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आखिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो जस्ट अज्यूम दिस इज अवर फील्ड where a capital Q charge is kept and another small q charge is kept at distance small r. So the force on small q charge due to capital Q charge will be F equals to K Q upon R square. Okay, this was the general thing. Let's assume this is a unit charge. Let small q is unit charge. Okay, so what will be the force? F will be our K Q upon R square. So this phenomena called electric field intensity. तो हम इसको जनरल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। The force effect on unit charge due to force charge called our electric field। यानी जो एकांक हमारा जो आवेश होता है उस पे किसी स्रोत आवेश के कारण जो हमारा बल का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अवर F वाज K Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, हमने यहाँ पर 1 यूनिट चार्ज पुट किया था, इसके कारण ये K Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया था। इसको हम डिवाइड कर दें स्मॉल q से, तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो वी कैन राइट दैट E इक्वल्स टू F अपॉन Q। सो अनदर डेफिनेशन फ्रॉम हियर, फोर्स per unit charge called electric field intensity. Okay, E equals to F upon Q, or we can write from here F equals to Q upon Q multiply E. Okay, so another electrostatic force formula has generated from here. The first formula was F equals to K Q1 Q2 upon R square. Okay, another formula is F equals to Q into electric field intensity, and electric field intensity equals to F upon Q, and electric field intensity equals to K Q upon R square. So these are 4 formula we have studied yet. Nothing is important, these formula are important here. Okay, so we have seen electric field intensity. Okay, now move to the properties of electric field intensity. अब हम पढ़ेंगे जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी गुणों के बारे में। ओके, उनके गुण क्या होते हैं, वो कैसे क्या दर्शाते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू प्रॉपर्टी। Okay, so our basic first property you can see from here, electric field
डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल q चार्जेस. E does not depend upon small q चार्ज. दैट्स मीन जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमेशा सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है. जैसे ये कैपिटल Q चार्ज है और ये स्मॉल q चार्ज है, इनके बीच डिस्टेंस r है. सो फोर्स विल बी फ्रॉम हियर बिकॉज वी आर कंसिडर दीज आर टू पॉजिटिव चार्जेस. देन अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किस चार्ज पे निकाल रहे हैं, इस q चार्ज पे निकाल रहे हैं. यानी जिस चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट पता करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन स्मॉल q चार्जेस. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन दिस चार्जेस. ओके, वी बिकॉज f अपॉन q, सो द k q अपॉन r स्क्वायर अपॉन q, this q will be cancelled, so electric field intensity is kq upon r square. ठीक है, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमें जिस चार्ज पे निकालनी होती है उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, हमेशा सोर्स चार्ज पे, जिस चार्ज के कारण फोर्स लग रहा है उस चार्ज पे डिपेंड करती है. ठीक है. अदर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, sorry intensity, not a density, electric field intensity follows electrostatic force direction. Okay, that means if there are two charges, capital Q and another is small q charge. Okay, so let's assume these are two positive charges, then force on small q due to capital Q charge, such like that. Okay, so this force direction is outwards or away from the small q charge. Okay, so electric field direction also will be in this direction. Okay, if assume this is capital Q charge and this is small q charge, okay, then force will be like that, sorry, then force towards be small q charge, then electric field charge intensity will follow the force प्रॉपर्टी. ओके, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ इनवर्ड होता है. यानी पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड अवे की ओर और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है इनवर्ड उसकी ओर होता है, यानी अट्रैक्ट करता है. ठीक है. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज electric field for positive charge is radially outward. ये मैं आपको बता ही चुका हूँ. Such like that we can understand from here. रेडियली क्या होता है? रेडियली मीन्स परपेंडिकुलर. यानी जो पॉजिटिव चार्ज है जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैंने भी बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की होती है, उससे अवे होती है, रिपेल करती है. तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जिस भी एंगल पे होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी. इस तरीके से आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड. सो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, ऐसे ही सेम नेगेटिव चार्ज के लिए होता है. नेगेटिव चार्ज पे इनवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दीज आर आल्सो परपेंडिकुलर. ठीक है. सो हम यहां से समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो रेडियली आउटवर्ड होंगी और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसके लिए इनवर्ड होंगी.
यानी नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगी, ठीक है। तो दीज आर द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ मूव टू द अदर प्रॉपर्टीज। Property number 5, electric field lines never intersect. Okay, why these electric field lines never intersect? Let's such like that this is the ए सरफेस टेंजेंट, ठीक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच रहे हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो टेंजेंट पॉइंट को ही शो करती है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ टेंजेंट, और जो हमारे टेंजेंट पॉइंट्स होते हैं उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। आप देखिए जैसे हमने ये इस साइड है, ये ई ए, ये ई बी, ये ई सी और ये ई डी। तो जितने भी टेंजेंट पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो वन डायरेक्शन होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब अगर जैसे ई ए पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है और ई बी पॉइंट से ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इस तरीके से, इस पे अगर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन खींचूंगा तो इस पॉइंट के लिए दो डायरेक्शन हो गई, एक तो ये टेंजेंट हो गया, सेकंड ये टेंजेंट हो गया, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेंजेंट पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो वन डायरेक्शन होती है, ठीक है, कभी भी ड्यूअल डायरेक्शंस नहीं होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर कट टू ईच अदर। ओके, another property, electric field lines originated from positive charge and terminated to negative charge। okay, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिन यानी जो उनका उत्पन्न होता है वो पॉजिटिव चार्ज से होता है, टर्मिनेटेड यानी जहां खत्म होती है वो होता है नेगेटिव चार्ज। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल रही है, ये भी पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल रही है, ये पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकल रही है, ठीक है, एंड टर्मिनेटेड टू नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती है। सो दिस लाइन विल बी टर्मिनेटेड हेयर, दिस विल बी टर्मिनेटेड हेयर, दिस विल बी टर्मिनेटेड हेयर, दिस विल बी टर्मिनेटेड हेयर। सो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम आउटवर्ड टू पॉइंट positive charge and inward to negative charge, outward to from positive charge and inward to negative charge, outward from positive charge and this is inward from negative charge। इसी तरीके से एक लाइन यहाँ से भी कहीं अनंत से फ्रॉम इन्फिनिट से यहाँ आ रही होगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में ही जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो रही होंगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में गई फिर नेगेटिव चार्ज से वापस पॉजिटिव चार्ज में आ रही, यानी लूप नहीं बना रही है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक ए लूप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैं लिख देता हूं 7th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर लूप्ड, यानी वो लूप नहीं बनाती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। नाउ ऑन टू द अदर प्रॉपर्टी,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होती है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है या नहीं है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम एक रिलेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रिलेशन, इस रिलेशन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है उसको समझते, उसी से हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। ओके, दिस इज पॉइंट चार्ज ए, दिस इज पॉइंट चार्ज बी एंड दिस इज पॉइंट चार्ज सी। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ठीक है, पॉइंट बी को मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। अब आप देखेंगे जो ये हमारा पॉइंट ए है, इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा है, यानी इनके बीच स्पेस कम है पॉइंट ए के साथ। ठीक है, तो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है पॉइंट ए पे। जो हमारा पॉइंट सी है इससे तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जो इसकी इंटेंसिटी होगी, डेंसिटी होगी, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, वो पॉइंट सी की कम होगी। इसी तरीके से पॉइंट बी, इससे भी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है पॉइंट ए के कंपैरिजन में। सो बी की जो डेंसिटी होगी या फिर इंटेंसिटी होगी या फिर स्ट्रेंथ होगी, हम कुछ भी बोल सकते हैं, वो ए से तो कम होगी लेकिन सी से ज़्यादा होगी। तो हम इसको किस तरीके लिख सकते हैं कि ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी, बिकॉज सी पॉइंट के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ओके, और जो ए पॉइंट है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी कम डिस्टेंस पे है, लेकिन जो हमारे पॉइंट बी है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉइंट सी के कंपैरिजन में तो कम डिस्टेंस पे है, लेकिन जो पॉइंट ए है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इंटेंसिटी और कह सकते हैं जो स्ट्रेंथ, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मुझे अभी ये ध्यान नहीं है, मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा कि ये किस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी है वो पॉइंट चार्ज के कारण करी, कि जैसे ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, इस पर हमको पता है कि हम फोर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तो एक स्ट्रेट लाइन की बात होगी कि स्ट्रेट लाइन चार्जेज है ना। अगर अब हमें फाइंड आउट करना हो ड्यू टू रिंग, कि किसी रिंग से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या फिर फोर्स क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना, तो हम कैसे करेंगे? तो इस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ डेंसिटी का। सबसे पहले लीनियर डेंसिटी, सेकंड एरियल डेंसिटी and third one is volume density. ओके, सो लीनियर डेंसिटी की बात करें, इसको हम डिफाइन करते हैं लैम्बडा से। आपको पता होगा जो डेंसिटी होती है वो जनरली क्या होती है, जनरल डेंसिटी होती है D इक्वल्स टू एम अपॉन वी। ये आपने केमिस्ट्री में काफ़ी पढ़ा होगा, हमारे फिजिक्स में भी जो प्रेशर के जितने भी चैप्टर्स होते थे या फिर थर्मोडायनेमिक्स में भी एम अपॉन वी यूज किया जाता। लेकिन ये होता था एक 3D यूनिवर्सल सिस्टम के लिए जहाँ पर वॉल्यूम होता था। अगर हमारे पास कोई रोड हो, ठीक है, और इस रोड से ही हम एक रिंग बना दें उसको, ठीक है, अब इस रोड का वॉल्यूम थोड़ा ना निकाल सकते हो। रोड के लिए तो हमारे पास क्या होता है, उसकी लेंथ होती है। रिंग के लिए क्या होता है हमारे पास, उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, वो भी एक लेंथ ही है।
जैसे ये एक रोड हो, अगर मैं इसको मोड़ के, ये तो काफ़ी ठोस है, अगर सिंपल एक तार हो जैसे आपके पास एल्यूमिनियम का तार, उसको आप मोड़ के अगर रिंग बना दोगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ना फाइंड आउट कर सकते हो, उसका सर्कमफ्रेंस तो डिफाइन कर सकते हो आप। तो ऐसी कंडीशन के लिए डेंसिटी क्या होगी, तो डेंसिटी हम वही डिफाइन करेंगे, मास, रोड का मास और रिंग का मास पर, अब हमारे पास वॉल्यूम नहीं है तो हमारे पास क्या है, लेंथ है, तो मास पर लेंथ कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। ठीक है, ऐसे ही एरियल डेंसिटी, हमारे पास कोई वॉल्यूम वाली चीज नहीं है, हमें सिर्फ उसका एरिया पता है। जैसे डिस्क का वॉल्यूम हम थोड़ा ना फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें तो उसका एरिया पता होता है। तो डिस्क जैसी सिस्टम के लिए या डिस्क जैसी बॉडीज के लिए जो हमारा एरियल डेंसिटी होता है उसे हम डिफाइन करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, मास पर एरिया। ठीक है, वो डिस्क का एरिया हो सकता है या फिर कोई सर्कुलर बॉडी का एरिया हो सकता है। नाउ कम्स टू द वॉल्यूम डेंसिटी। जैसे एक क्यूब है हमारे पास, आपने क्यूब देखा होगा इस तरीके से, ये हमारे क्यूबिकल बॉडी है। ठीक है, इस टाइप की बॉडी सिस्टम के लिए डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, उसको हम डिफाइन करेंगे रो से। तो रो क्या हो जाएगा हमारा, मास पर वॉल्यूम। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक डेंसिटी। ये आपके 11th क्लास में भी है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जो हमारा रिंग वाला जो क्वेश्चन है जिसके कारण हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहाँ पर हमारे पास लीनियर डेंसिटी का जो टॉपिक है वो काम में आएगा। तो जो हमारी लीनियर डेंसिटी होती है वो होती है मास पर लेंथ। ठीक है, जो हमारी एरियल डेंसिटी होती है वो कहलाती है सिग्मा, सिग्मा इज मास पर एरिया। ओके, एंड द वॉल्यूम डेंसिटी वी नो दैट फ्रॉम द वॉल्यूम, सो मास पर वॉल्यूम। सो आज के लेक्चर यहीं ओवर करते हैं, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया है। हम जो न्यूमेरिकल है रिंग वाला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।